All right. You all can hear me now, right? Yes, today we are going to learn inheritance and variation. Yes, the last topic of inheritance and variation, the most interesting chapter, right? Yes. So, am I visible and audible? Loud and clear? Click on yes if yes. Cool. How is everyone? After so long, after 5 days or 6 days of gap, we are meeting, right? Yes? Thank you, Samiksha. Thank you so much. So as you all can see on the screen, this is lecture 10 of the chapter Inheritance and Variation, right? Inheritance and variation, right? So today we'll be talking about sex-linked recessive disease, right? Some dominant disease, yes? And after that, we will just revise this chapter once again. Okay, I'll just tell you what all things we have discussed in this chapter so that everything comes back to your brain. Cool? Yes? So these are the topics which we are going to learn today. Sex-linked recessive disease, autosomal dominant disease, sex-linked dominant disease, and then chromosomal disorders. Finally, if time is there, I will also try to teach you this pedigree analysis. It is not there in detail, but as I was going through the book, Maharashtra book, I saw there was a question in your exercise which was related to pedigree analysis, right? In the textbook, they have not explained it, but it is there in the question. Those who are following NCERT books, it is there. For them, you need to study pedigree analysis. So I will focus on this also today. Okay, a little bit on pedigree analysis. Cool? So can we start? Yes? Recessive, right? We had already learned autosomal recessive. Yeah, I had asked you to go through this. I had asked you, even I had told you that if you remember this, it will help you to remember autosomal recessive disease, alpha-synuclein right? I hope you have revised it. Okay? Then sex-linked recessive disease. Every time I have told you, if sex-linked is there, it means it is which chromosome linked? It is X-linked, right? It is X-linked. Cool? Then we had seen some of the diseases named. Color blindness, hemophilia, night blindness, muscular dystrophy. It might happen that sometimes you see Duchenne's muscular disease. Both are same. Okay, both are same. If in the exam muscular dystrophy is there or Duchenne's muscular dystrophy is there, both are same. Okay. Yes. So don't get confused with what is this. Both are same. Cool. Let me fix it a little bit. So, and I had told you how to remember it, right? Color blindness से हमें रात night blindness difficulty होती है, muscular dystrophy, color blindness, hemophilia, night blindness, muscular dystrophy. Yes? So I hope by now everyone has joined the class also. So we are gonna start the details of it. Cool? Color blindness. First thing you should know, it is sex-linked recessive disease, right? Sex-linked recessive disease. So what do you know about it? Sex-linked recessive disease. It will be X-linked disease. We had learned it now in detail. It will be X-linked disease, right? Since it is recessive disease, if you want the disease to happen in female, just a quick revision. If you want a sex-linked recessive disease to occur in female,
What should be the condition? Tell me. Homozygous recessive, like this, small c, or heterozygous or homozygous dominant. Which condition is required? Which condition? You can answer like this, first, second, third. Which condition is required to occur or to cause the disease in females? Shruti has answered. Nothing new. It will just show me how many of you revise things, right? Ahmed has answered. Very good, Ahmed. Sonam has answered. Wonderful. We have learned it so many times, na? Haan, Shruti. What is this? Homozygous recessive condition. Then only sex-linked recessive disease will occur in female. And we had learned, if it is a male chromosome is this, na? XY. They have only one X chromosome. They have only one X chromosome. It means even if one X chromosome has the small letter, it will express. It will get expressed. वो express हो जाएगा. इसलिए हमने सीखा था कि अगर कोई फीमेल ऐसे कंडीशन में है, कैपिटल सी और स्मॉल सी, ये डिजीज किसको ज्यादा देगी? फीमेल को ज्यादा चांसेस है डिजीज देने की या मेल को ज्यादा चांसेस है डिजीज देने की? सन को या डॉटर को? हमने ये सीखा था ना लास्ट क्लास, जल्दी से बताओ. अगर हेटेरोजाइगस फीमेल कैरियर है तो ये किसको डिजीज ज्यादा देंगी? डॉटर को देंगी ना? बिल्कुल. तो देखो मेरे को एक ही आंसर्स मिल रहे हैं बार बार. मुझे तेजू, श्रुति, सोनम, श्रुतिका, अहमद, सिर्फ इनसे आंसर्स मिल रहे हैं. बाकी सब समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? Only 6 of you are answering. अगर आप समझ रहे हो तो यस पे क्लिक कर दो, ठीक है? मान लो आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपको प्रॉब्लम होती है रिप्लाई करने में. आई अंडरस्टैंड. यू कैन क्लिक ऑन यस, तो मुझे समझ आएगा कि आपको समझ आया है ना? यस. तो हमने ये सारी चीजें सीखी थी, ठीक है? अब हम सीखते हैं कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस. तो अगर कोई बोलता है कि कलर ब्लाइंडनेस को एक्सप्लेन कर दो, पहला डिजीज, कलर ब्लाइंडनेस को एक्सप्लेन करो, तो क्या बोलोगे आप? इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. पहला लाइन क्या होगा आपका? फर्स्ट लाइन वुड बी इट्स अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, है ना? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. दूसरा लाइन आपका क्या हो सकता है? दैट इट अकर्स इन फीमेल in homozygous recessive condition, right? It occurs in female in homozygous recessive condition, right? And third point क्या लिख सकते हो? heterozygous females are carriers. ध्यान से देखना, सबको समझ आ रहा है कि नहीं? सबको ऐसा वाला कंडीशन. Heterozygous females are carriers. And fourth point क्या लिख सकते हो? Carriers transmit disease to sons, right? And in bracket you will write probability is high, or you can write the probability of a son getting a disease from a carrier is high. Let me write that way. The probability of, I think I have made you write it before also, na? Last class also I have made you write. The probability of son getting a sex-linked disease from a carrier is more. I hope सबको समझ आ रहा होगा, क्योंकि सन के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है ना?
यस यस अनुष, गुड मॉर्निंग। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख दोगे। अब क्या लिखोगे इसके बाद क्या लिखोगे? इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? ये तो लिख सकते हो सब लोग, है ना? ये हमने बार बार सीखा है, ठीक है। अब स्पेसिफिक टू कलर ब्लाइंडनेस की होगा क्या? पर्सन विल हैव प्रॉब्लम विथ डिफरेंशिएटिंग, बस ये लाइन आपको ऐड कर देना है, डिफरेंशिएटिंग रेड एंड ग्रीन लाइट, रेड एंड ग्रीन लाइट, ग्रीन ऑब्जेक्ट, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। रेड एंड ग्रीन ऑब्जेक्ट। किसने किसने ये चेकअप कराया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू द आई checkups or eye hospitals and they have done this for you? Ahmed? Almost. Now these days what is happening na, if you go for eye checkup, they do color blindness checkup also. So you have observed that they will have something like this, है ना, different color, red color, on top of it green color, and then it might also have, mostly it will be red and green color, है ना? तो images will be there, number will be there ना, 1, 3, 4, and they will ask you to identify what all things are there. Yes or no? Yes na? So that is the testing of color blindness, कि do you have color blindness or not? Okay, yes. Can you do one homework? Actually this is there in your book itself, but find out what is this called as. What is this called as? What is this called as? This testing is there na, to check the color blindness, the images and all which they show you. What is that called as? What is that called as? Can you do that? It is in your book. You need not Google also. It is there in your book also. ठीक है? Maharashtra book it is there. NCERT book it is not there. ठीक है? We should know, no? It's interesting, right? If you go to a doctor is checking you for color blindness, you should say na ki हाँ doctor, it is this na, this test you are conducting, right? Yeah, so you should know that, right? So Teju has found it out, others should also find it out. ठीक है? You can combine some girl's name. If you see the name na, you will find out some girl name is hidden in the test. Okay, ठीक है? So that is color blindness. Then hemophilia. Next, second disease we are learning, hemophilia. What happens in hemophilia? You know, again, if hemophilia they are asking you, you will write what? These 4 points are fixed. Yes, Aditi, you have also found it out. Yes. So you will do what? You will first write these 4 points for all sex-linked recessive disease. Cool. Now the fifth point. The fifth point. In hemophilia, you can say it is also called as bleeder's disease. It is also called as bleeder's disease. Now the name should tell you. क्यों इसको हम bleeder's disease बोलते हैं? ये disease हो गया तो अगर आपको कोई भी कट हुआ आपके बॉडी में, आपके बॉडी में अगर कोई भी कट हो गया, ठीक है, आपके बॉडी से क्या होगा? बहुत ही ब्लड निकलेंगे, ठीक है? यस, आपके बॉडी में क्या होगा? बहुत ब्लड रिलीज होंगे, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, है ना? जनरली अभी अगर आपको कट होता है तो क्या होता है? थोड़ी देर ब्लड निकलेगा एंड आफ्टर दैट ब्लड क्लॉट हो जाएगा ना, ब्लैक कलर का स्कम बन जाता है वहां पे, ऑब्जर्व किया होगा सबने। लेकिन अगर किसी को हीमोफीलिया है, उनको अगर कट होता है तो उनके बॉडी से ब्लड लॉस होता रहता है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है ना?
तो हीमोफीलिया क्या है? ब्लीडर्स डिजीज है. इट्स ऑल्सो अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. 6th पॉइंट क्या लिखोगे? होता क्या है इसमें? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड डज नॉट हैपन. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड डज नॉट हैपन, है ना. हमारे बॉडी में कुछ कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. हाँ श्रुति, मैं वो भी पॉइंट बोलूंगी, है ना. हमारे बॉडी में क्या होता है? कुछ कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को कोएगुलेट करने में हेल्प करते हैं, जो ब्लड को कोएगुलेट करने में हेल्प करते हैं और ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. कुछ प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि उनको हम नाम देते हैं क्लॉटिंग फैक्टर. क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 9, है ना. ये आपको समझ आता है ना? ऐसा वाला नंबर समझ आता है ना? 8 9. ये 8 है, ये 9 है. आपको भी ऐसे ही लिखना है. हम, ये कन्वेंशन है, हमेशा जब क्लॉटिंग फैक्टर को लिखोगे ना तो ऐसे रोमन्स में लिखते हैं. ठीक है. आप ऐसे मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा. ओके. तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 अगर नहीं बना आपके बॉडी में तो हीमोफीलिया कौन सा होता है? हीमोफीलिया ए. अगर क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं बना आपके बॉडी में तो हीमोफीलिया बी. इतना जान लो. ठीक है. इतना काफी है. बहुत चीजें होती हैं इसमें, बट दिस इज एनफ फॉर बोर्ड्स. ठीक है. क्लॉटिंग फैक्टर 8 अगर बॉडी में नहीं बना तो आपको हीमोफीलिया ए डिजीज होगा. क्लॉटिंग फैक्टर 9 अगर नहीं बना तो हीमोफीलिया बी डिजीज होगा. ठीक है. सेजल एंड प्रियंका, आप करेक्ट हो. वो सब नाम है क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 का. ठीक है. तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 हीमोफीलिया ए, क्लॉटिंग फैक्टर 9 हीमोफीलिया बी. अब ऐसा मत लिख देना क्लॉटिंग फैक्टर 8 हीमोफीलिया ए. नहीं, क्लॉटिंग फैक्टर 8 अगर नहीं है तो हीमोफीलिया है. मैं यहाँ ऐसे नेगेटिव साइन दे देती हूँ. अगर ये आपके बॉडी में नहीं बना तो ए और बी डिजीज होगा और आपको ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, है ना. कहा जाता है ये रॉयल डिजीज है. क्या कहा जाता है? रॉयल डिजीज है. मतलब भाई तुम्हें हो गया तो तुम रॉयल खानदान से बिलोंग करते हो. ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी रानी को ये डिजीज था, है ना. कोई रानी इसकी कैरियर थी, है ना. कौन सी रानी? विक्टोरिया, है ना. तो विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया इस डिजीज की कैरियर थी. तो वो बहुत लोगों को, अपने जनरेशन को, अपने बेटों को डिजीज को दी, है ना. इसलिए इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज. रॉयल disease. It is a royal disease. Why? Because it is said that Rani Victoria was the carrier of this disease. ठीक है. तो उन्होंने अपने बहुत सारे बेटों को ये डिजीज दिया, अपने पूरी फैमिली को फैला दिया. She was the carrier. रोशनी ने भी फाइंड आउट कर लिया. देखो जल्दी करो. So many of you have found it out. What is this called as? What is this test called as? आप फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. रोशनी ने भी फाइंड आउट किया. ठीक है. चलो. So that is hemophobia. अभी नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होगा बोलो? हमने कलर ब्लाइंडनेस सीख लिया, हीमोफीलिया सीख लिया. नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होगा? लेट्स गो बैक एंड लर्न नाइट ब्लाइंडनेस. ठीक है. नाइट ब्लाइंडनेस. तीसरा डिजीज हम सीख रहे हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव. तो 4 पॉइंट तो चिपका दोगे आप सब कुछ. 4 पॉइंट सेम है ना. नाइट ब्लाइंडनेस, इसके नाम में ही आपको समझ आ जाएगा कि ये होता क्या है. ठीक है. यस. क्या श्रुति, क्या डाउट है आपका? मैम बट बोथ हर पेरेंट्स वर नॉट हैविंग द ट्रेट ऑफ. हाँ ठीक है, चलो कम बैक. श्रुति का डाउट क्लियर कर लेते हैं, जो उसका डाउट है. मान लो
मेल नॉर्मल है। आपका डाउट यही है, श्रुति का ये डाउट है कि दोनों पेरेंट्स को तो डिजीज नहीं था ना, दोनों पेरेंट्स को तो डिजीज नहीं था। विक्टोरिया की कहानी वो बोल रही है, ठीक है। तो मेल नॉर्मल है, मेल क्या है, नॉर्मल है। फीमेल हेट्रोजाइगस है ना। तो भाई इससे 2 गैमेट्स आएंगे। श्रुति आप देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा धीरे धीरे यहीं पे। इससे x आएगा और y आएगा। बना दो इसका चेकर बोर्ड बना दो। एक्स वाई मेल गैमेट यहां लिख दिया मैंने, फीमेल गैमेट यहां लिख दिया मैंने। लिखो क्या आएगा यहाँ पे, एक्स एक्स सी, है ना। ये तो नॉर्मल डॉटर हो जाएगी उसकी। अभी यहाँ पे क्या आएगा, एक्स सी, ये क्या हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी। फिर से सोचना है, मैं जो लिख रही हूँ उसके बारे में सोचना एक बार। ये क्या होगा, एक्स सी वाई, है ना। और ये क्या है, एक्स स्मॉल सी वाई। तो किसको डिजीज हुआ, इसी को डिजीज हुआ ना सिर्फ। सोचो श्रुति, क्या फर्क पड़ रहा है, फादर को डिजीज है या नहीं। कैरियर डिजीज दे सकती है ना, क्योंकि अगर एक भी स्मॉल सी चला गया तो डिजीज तो हो जाएगा सन को। इसीलिए बोला जाता है कि क्वीन विक्टोरिया ने अपने बेटों को डिजीज दिया था, अपने बेटों को डिजीज दिया, अपने सन को डिजीज दिया, है ना। ठीक है, चलो सेजल ने भी फाइंड आउट कर लिया है कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट को क्या बोलते हैं। अब आते हैं नाइट ब्लाइंडनेस पे। नाइट ब्लाइंडनेस, तो भाई इसमें क्या होगा, आपकी बॉडी में आपको रात में नहीं दिखेगा, आपको रात में नहीं दिखेगा, मतलब आपको रात में धुंधला दिखेगा, आप चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे रात में, वही है नाइट ब्लाइंडनेस। बाकी 4 पॉइंट आप सेम लिखोगे एंड 5th पॉइंट लिखोगे, द पर्सन विल नॉट बी एबल टू सी ड्यूरिंग द इवनिंग, ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, ये होता है विटामिन ए की कमी से, ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए, ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए। आपका एक नाम रेटिनॉल है, ठीक है। तो ड्यू टू लैक ऑफ रेटिनॉल क्या होता है, आपके रॉड सेल्स नहीं बनते हैं। आप सीखोगे कि हमारे आंखों में, सीखोगे क्या, आपने सीखा होगा राइट, 11th स्टैंडर्ड में ह्यूमन आई पढ़ना था ना, रिमेम्बर, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आंखें और कान ये 2 स्ट्रक्चर्स पढ़ने थे। तो वहां पे पढ़ा होगा रॉड सेल्स नाइट विजन के लिए है, और कोन सेल्स किसके लिए होते हैं, C4 कोन, C4 कलर। आपको कलर कब दिखता है, दिन में दिखता है ना, तो ये डे विजन के लिए था। रॉड सेल किसके लिए था, नाइट के लिए। तो नाइट ब्लाइंडनेस में आपको इसकी कमी हो जाती है, इसकी वजह से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, सेक्स लिंक्ड डिजीज, है ना, आपके एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, अब आते हैं चौथी डिजीज पे। व्हाट इज दैट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जीन है, एक जीन है जो कहाँ लोकेटेड है, एक्स क्रोमोसोम पे। एक जीन है जो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। उस जीन का नाम क्या है पता है, उस जीन का नाम है डिस्ट्रोफिन। उस जीन का नाम क्या है, डिस्ट्रोफिन। उस जीन का नाम क्या है, डिस्ट्रोफिन। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होगा, ये जो डिस्ट्रोफिन है, जो डिस्ट्रोफिन है वो नहीं बनेगा, जो डिस्ट्रोफिन है वो नहीं बनेगा। और जब डिस्ट्रोफिन नहीं बनेगा तो आपका मसल लॉस होगा। आप अच्छे से, जैसे मैं अभी ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, आई एम एबल टू डू इट क्योंकि मेरे बॉडी में डिस्ट्रोफिन है। अगर किसी, ये ऐसा कहा जाता है ना, ये डिजीज देखो, ये भी डिजीज किसमें ज्यादा होंगी,
सन को ज्यादा होने के चांसेस है ना, तो ऐसा बोला जाता है ये बहुत रेयर डिजीज है, जल्दी नहीं होता लोगों को, लेकिन अगर होता भी है तो ज्यादा लड़के अफेक्टेड होते हैं, सन्स ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है ना। तो डिस्ट्रोफिन अगर नहीं बनेगा तो मसल लॉस धीरे धीरे होगा, इंसान को प्रॉब्लम होगी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में। समझ रहे हो बात? तो 4 पॉइंट तो वही चिपकाओगे, फिर क्या लिखोगे? इन दिस डिजीज द जीन which code for dystrophin protein that gets affected, so the dystrophin protein is not synthesized, due to that there is muscle loss and there is problem in contraction and relaxation. क्या ये लिख पाओगे? क्लिक ऑन यस। मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है, वो 4 पॉइंट सेम लिखोगे आप, फिर क्या लिखोगे? The dystrophin protein is not synthesized. Because of that, it causes problem in contraction and relaxation, and thereby muscle loss takes place. क्या आप लिख पाओगे? है ना, साथ साथ लिख सकते हो, मैं इतना धीरे बोलती हूँ, you can write it same time. Actually ये लिखा हुआ ही है, आपको बस इसमें थोड़ा अंग्रेजी यूज करना है बस, है ना, थोड़ा सा सेंटेंस बनाना है, ठीक है? कर लोगे ना? बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, मैं देख सकती हूँ। मुझे आगे बढ़ेगी और हम सीखेंगे डोमिनेंट डिजीज। क्या सीखेंगे? डोमिनेंट डिजीज। डोमिनेंट डिजीज, तो इसमें डिवाइड कर दो इसको, इसमें भी 2 हो जाएंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट, है ना, एंड सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, राइट? ऑटोसोमल का मतलब एक्स और वाई में नहीं होगा डिजीज, एक्स वाई क्रोमोसोम को छोड़ के सारे क्रोमोसोम में अगर होता है वो ऑटोसोमल हो गया। और सेक्स लिंक्ड बोल दिया मैंने, मतलब एक्स क्रोमोसोम में होगा। अगर मैंने होलैंड्रिक बोला, होलैंड्रिक मतलब किसमें होगा? वाई में होगा। इतना तो आप समझ गए होंगे, मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, है ना? तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, सबको याद है? अगर डोमिनेंट डिजीज है तो क्या सबको ये याद है? याद भी रखने की जरूरत नहीं है, लॉजिक देखो, अगर डोमिनेंट है इसका मतलब इन दोनों ही फॉर्म में डिजीज होगा या नहीं? यस और नो में मुझे आंसर कर दो। इन दोनों फॉर्म में, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, दोनों ही फॉर्म में डिजीज होगा या नहीं? यस और नो में आंसर कर दो फटाफट। होगा ना, क्योंकि ये डोमिनेंट डिजीज है, हमें पता है कोई भी एक कैपिटल तो डिजीज हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो हमें मिल ही गया कि the disease occurs on autosomal chromosome and the disease will be expressed in homozygous dominant and heterozygous dominant. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं ना, बहुत बार मैंने सीखा है, एक बार फिर से रिवाइज करना, नोट्स को देखना, मैंने अच्छे से इसको फिर से लिखाया है वहां पे भी, है ना? अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ ऑटोसोमल डोमिनेंट एग्जाम्पल। ये वाला जो एग्जाम्पल हमने उस दिन सीखा था ना, विडोज पीक, ऐसा कुछ होता है, मतलब यहाँ पे वी शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब अगर कोई इंसान है, उसका ये सिर है और इधर बाल होंगे, ऐसे कुछ बाल होगा इधर। अच्छा, बाल में व्हाइट से बनाती हूँ ना, दिख नहीं रहा होगा आपको, राइट? अगर ऐसे कुछ बाल है इधर, तो जनरली ऐसा फ्लैट होता है ना, ऐसे फ्लैट आप देख सकते हो, जनरली ऐसे फ्लैट होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन किसी लोगों में क्या होगा, यहां से बाल इधर आ जाएगा थोड़ा सा,
और इधर से भी बाल थोड़ा इधर आ जाएंगे। फोरहेड में ऐसे वी के जैसा शेप बनाएंगे। आपके फोरहेड में कैसा शेप बनाएंगे? वी के जैसा। तो ऐसा जब किसी के पास हो ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा किसी ना किसी फ्रेंड को ऐसे बाल होंगे उनके, है ना? तो ऐसे जो होते हैं ना उसको बोलते हैं, कौन सा कंडीशन है उसको? विडोज पीक। कौन सा कंडीशन? विडोज पीक। V shaped structure on the forehead. The hair start forming a V shaped structure on the forehead. हाँ, कुछ कुछ हीरोइंस लोग को भी होता है, एकदम होगा। सब नॉर्मल है ना, फीमेल्स सब ह्यूमन बींग्स ही है ना, तो होंगे ही होंगे, राइट? है ना खुशबू? तो वही हो गया आपका विडोज पीक। सबको समझ आया विडोज पीक होता क्या है? ऐसे जो स्ट्रक्चर बन जाए फोरहेड पे, बाल आपका ऐसे ऐसे हो, तो उस पे आपको विडोज पीक होगा। अब ये होता क्यों है? तो आपका ये ऑटोसोमल डिजीज है। आपके किसी ना किसी क्रोमोसोम में डिफेक्ट हो गया आपको, है ना? आपका किसी क्रोमोसोम में डिफेक्ट हो गया, लेकिन वो किस में नहीं है? एक्स वाई में नहीं है। एक्स वाई को छोड़ के किसी में भी हो गया, और उससे क्या हुआ? आपका बाल का ग्रोथ किधर भी होने लगा। आपका बाल का ग्रोथ यहाँ पे भी होने लगा, और वो वी का शेप बनाया। ठीक है सेजल? एक्स वाई को छोड़ के आपके क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट हो जाता है और आपका शेप वी हो जाता है। ठीक है? और कोई एग्जाम्पल ऑटोसोमल डोमिनेंट का? बहुत एग्जाम्पल है, बट मैं आपको कुछ ही एग्जाम्पल बताऊंगी ताकि आप सीख सको, है ना? एग्जाम में कंफ्यूज नहीं रहो। हंटिंगटन्स डिजीज, हंटिंगटन्स, बस एग्जाम्पल याद कर लो, ठीक है? हंटिंगटन्स डिजीज, हंटिंगटन्स डिजीज, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। कुछ कुछ सिम्टम्स मैं बता सकती हूँ, जैसे कि आपके न्यूरॉन्स अफेक्टेड हो जाएंगे, आपका इमोशंस इफेक्ट होगा, आप कैसे लोगों से बात कर रहे हो, गुस्सा कब हो रहे हो, सैड कब हो रहे हो, ये सब चीजें इफेक्ट होती है हंटिंगटन्स डिजीज से। ठीक है? तो आपका नर्व सेल, आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका इमोशंस, ये सब इफेक्ट होता है हंटिंगटन्स डिजीज से। ठीक है? यस? तो दो एग्जांपल्स बस याद कर लो। विच क्रोमोसोम जानना है सेजल? ठीक है, बता देती हूं मैं। फोर्थ क्रोमोसोम पे होगा ये। कौन से क्रोमोसोम में होगा? फोर्थ क्रोमोसोम। कोई पूछेगा नहीं आपसे, बट मैं बता दे रही हूँ, ठीक है? बोर्ड्स में कोई भी नहीं पूछेगा, बट ठीक है, इफ यू हैव इंटरेस्ट आप जान लो, ठीक है? फोर्थ क्रोमोसोम पे होता है। ठीक है? हाँ हाँ ना श्रुति, क्यों नहीं अक्वायर्ड? अच्छा, बर्थ के बाद बोल रहे हो क्या? बर्थ के बाद बोल रहे हो कि ये आएगा या नहीं खुद से? बर्थ के बाद? बर्थ के बाद कैसे होगा? ये सब आपको कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे डिजीज आपको आपके पेरेंट्स से आ रहे हैं। ये सारे डिजीज आपको आपके पेरेंट्स से आ रहे हैं। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये जानो आप, ये अगर पेरेंट्स से आते हैं ना, बर्थ आप जब जन्म लिए हो तब से ही आपके क्रोमोसोम में ये डिफेक्ट है ना? आपको ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ऐसे डिजीज को हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज। क्या बोलते हैं? कॉन्जेनाइटल, मतलब आपको बर्थ से ही है कॉन्जेनाइटल डिजीज। आपको ये जीन आपके पेरेंट्स के थ्रू मिली है ना? सोचो, आपको ये जीन आपको पेरेंट्स के थ्रू मिली है, राइट? तो ये कॉन्जेनाइटल डिजीज है, बाय बर्थ आपको मिली है ये डिजीज। ठीक है ना? ओके, बस ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे हम, ठीक है? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, हंटिंगटन डिजीज, विडोज पीक। हंटिंगटन्स में आपकी बॉडी, न्यूरॉन्स, सिंस आपके न्यूरॉन इफेक्ट होते हैं ना, जिसकी वजह से आपका इमोशंस इफेक्ट होगा। हम बोल नहीं सकते कि आपको कैसे कब होगा, कुछ भी हो सकता है। आप कैसे भी रिएक्ट कर सकते हो, हंसना है। ये वाली मूवी देखी थी आपने? अरे कौन सी थी? थ्री इडियट्स में, आई थिंक थ्री इडियट्स में ही था वो, जब उसे गुस्सा आता था तो वो हंसता था, बॉमन ईरानी। याद है क्या किसी को? नहीं याद है क्या अनुष? देखा नहीं क्या मूवी?
अच्छा, मुन्ना भाई एमबीबीएस में था क्या? मुझे याद नहीं अच्छे से। किसी में तो मैंने देखा था, वॉमन ईरानी ही था वो। उसको गुस्सा आता था तो वो हंसता था, है ना, वॉमन ईरानी। यस। तो क्या है वो, इमोशंस, उसको गुस्सा में गुस्सा दिखाना चाहिए, बट वो हंस रहा है, राइट? तो ये सारी चीजें क्या है, चेंज इन इमोशंस है। तो हो सकता है कि उसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था। ठीक है, मुन्ना भाई एमबीबीएस में था क्या? चलो बढ़िया। मैं देखूंगी आज एमबीबीएस। बहुत अच्छी मूवी है ना, एकदम मतलब मस्त मूवी है, राइट? है ना? एकदम मूड फ्रेश हो जाता है मूवी देखकर। आई वॉच इट टुडे। आप लोग वॉच कर सकते हो, बट बोलना मत कि मैंने एडवाइस किया था। ठीक है? ओके। सो यस, सो दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। और भी बहुत एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं बता नहीं रही हूँ आपको। ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। ठीक है, फिर सेक्स लिंक्ड डिजीज में आ जाते हैं। पहला सेक्स लिंक मतलब एक्स लिंक डोमिनेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज। एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, बस एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने सुना है रिकेट्स के बारे में ना। रिकेट्स सुना है? रिकेट्स के बारे में किसी ने सुना है? रिकेट्स के बारे में, वो आपके जो बोन्स होते हैं, बचपन में ऐसे किया गया होगा आपको कि आप खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो गए। फिर आपको बोला गया होगा दोनों पैर को साथ लाओ, हाँ ले आए। तो क्या होता है, जो आपके नीज होते हैं ना, मान लो ये आपके पैर है, यहाँ नीज है, ठीक है, ये दूसरा पैर है, यहाँ पे नीज है। अगर ये आपके नीज एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, अगर आपके नीज एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो हम बोलते हैं ना, उसको रिकेट्स है ना? है कि नहीं? तो ये कुछ कुछ डिजीज ऐसी होती है रिकेट्स के, कभी कभी विटामिन डी के डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। देखो, रिकेट्स एक ऐसा डिजीज है ना, जो अगर आप विटामिन डी आपको नहीं मिला अच्छे से, आप ग्रोथ आपका हो रहा है, आप बड़े हो रहे हो, बच्चे से बड़े हो रहे हो, अच्छे से विटामिन डी नहीं मिला, तो हो सकता है कि आपको रिकेट्स हो जाए, आपके घुटने टच होने लगे एक दूसरे से। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो डिजीज जन्म से मिली हो, आपके क्रोमोसोम में डिसऑर्डर हो, है ना, आपके बोन्स वीक हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, यस अनुष, आपके बोन्स थोड़े सॉफ्ट और वीक हो जाते हैं, लेग क्रॉस हो जाते हैं, उसी का मतलब है। हाँ, यस रहमानी, यस खुशबू, आपके लेग क्रॉस हो जाते हैं, है ना? तो वैसे लोग एथलीट नहीं बन पाते, अच्छे एथलीट नहीं बन पाते ना, क्योंकि उनको दौड़ने में प्रॉब्लम होगी। वो ज्यादा फास्ट दौड़ते हैं ना, तो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं उनके। ठीक है, तो ये सारी चीजें को चेक किया जाता है जब किसी को एथलीट बनना होता है, लंबे लंबे रन्स करने होते हैं, लॉन्ग रन, तो उनको ये सब चीजें चेक की जाती है उनके लिए, है ना? तो एक डिजीज हमने ये देख लिया। ठीक है, और कोई डिजीज है क्या? वाई लिंक डिजीज देख ले, वाई लिंक डिजीज, होलैंड्रिक, वाई लिंक डिजीज, वाई लिंक डिजीज, किसने किसने ये ऑब्जर्व किया है? हाँ, आर्मी में भी वो चेक किया जाता है श्रुति, क्योंकि आर्मी में भी आपको अच्छे चाहिए ना, दौड़ना पड़ता है उनको, बहुत एक्सरसाइज वगैरह करना होता है ना, इसलिए। वाइलिंग डिजीज आपके जो ईयर्स है ना, लड़कों में होगा ऑब्वियसली वाइलिंग, मतलब फीमेल का तो काम खत्म, फीमेल को ये डिजीज होगा ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि फीमेल को तो वाई होगा नहीं। तो जैसे मेल्स, किसी किसी मेल्स के कान में बाल देखे हो? किसी किसी मेल्स के कान में बाल देखे हो, ऑब्जर्व किए हो कि अगर कोई मेल है, उनके कान पे बाल है, पिन्ना पे बाल है ना? किसी किसी को होता है, किसी किसी को। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर ट्राइकोसिस। क्या बोलते हैं? हाइपर ट्राइकोसिस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस हाइपर ट्राइकोसिस? ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना में क्या होंगे, बाहर से आपको बाल दिखेंगे, ईयर पिन्ना में आपको बाहर से बाल दिखेंगे। ठीक है, ओके, लिख देती हूँ इसको।
ईयर पिन्ना हैज हेयर। देखो बाल सबको है, हमारे बाल में भी बाल है, सॉरी हमारे कान में भी बाल है, लेकिन वो दिखते नहीं ना बड़े बड़े, लेकिन वो एक्सेसिव डेवलपमेंट होगा, एक्सेसिव हेयर, एक्सेसिव हेयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइपरट्राइकोसिस। हाँ, यस, तो वो कंडीशन भी आपका वाइलिंग की है ना सेजल। एक चीज मैंने, मुझे लगता है गड़बड़ किया कहीं तो गड़बड़। आप ये चीज देख सकते हो क्या, विडो स्पीक। विडो स्पीक जो है, देखो विडो से रिलेटेड है ना, विडो, विडो किससे रिलेटेड है, विडो किससे रिलेटेड है, विडो किसको बोलते हैं, फीमेल को, है ना, फीमेल्स विडो बन जाती है, राइट, यस। तो इसका नाम विडो स्पीक क्यों है, विडो स्पीक क्यों है, जनरली ये ऑब्जर्व किया जाता है फीमेल्स में, इसलिए, ठीक है, जनरली, जनरली ये ऑब्जर्व किया जाता है फीमेल्स में, इसलिए इसको विडो स्पीक बोला गया है, इसलिए बस मुझे ये पॉइंट एक दिखाना था। सलमान, हाँ बॉयज को भी हो सकता है, ये ऑटोसोमल डिजीज है ना, ऑटोसोमल डिजीज है ना, यही तो बात है। ऑटोसोमल का मतलब ये किसी को भी हो सकता है, इक्वल चांसेस है मेल को होने का और फीमेल को होने का। बट हमने ऐसे इसका नाम बस दे दिया गया है क्योंकि लोग ज्यादा, देखो लड़कों के बाल इतना पता नहीं चलते ना, लड़कियों के बाल बड़े होते हैं तो ज्यादा दिखता है उनके बाल कैसे है क्या है ना, इसीलिए उनको ऐसे नाम दे दिया है विडोज भी। तो मैं इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, है ना, यस। बस जान लो विडो स्पीक ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑब्वियसली इक्वल चांसेस हैं लड़कों को होने के भी और लड़कियों को होने के भी, क्योंकि ये ऑटोसोमल डिजीज है ना, दोनों का इक्वल चांसेस है। तो इस तरह से हमने सारे डिजीज पढ़ लिए, ठीक है, सारे डिजीज पढ़ लिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक रिसेसिव। किसी को कोई डाउट है तो क्लिक ऑन यस, अदरवाइज क्लिक ऑन नो, ताकि हम कुछ और सीख सकें। जिसको भी डाउट है प्लीज आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, जिसको भी डाउट है मैसेज कर दो जल्दी से, आई विल क्लियर योर डाउट। जिसको भी डाउट है मैसेज मी, तभी तो मेरे को समझ आएगा ना आपको डाउट क्या है। हमने कुछ नहीं सीखा, हमने बस ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज सीखा, है ना, उनके प्रॉपर्टीज सीखे, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा, ऑटोसोमल डोमिनेंट और सेक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज देखा। वाई लिंक डोमिनेंट में एक ही डिजीज है क्या मैम, हो सकते हैं और भी डिजीज धनेश्वरी, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकते हैं और भी डिजीज, हमें सीखना एक ही है, ठीक है, होलैंड्रिक वाला, हमें हाइपरट्राइकोसिस ही सीखना है। वो चेस्ट पे बाल होना ज्यादा, है ना, मेल्स में, किसी किसी मेल्स में देखोगे आप चेस्ट पे बहुत बाल होता है, तो दैट इज ऑल्सो वाई लिंक, है ना, यस। ऑस्टियोमैलेसिया इज अ डिफरेंट कंडीशन खुशबू, आपने सीखा होगा उसको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, ठीक है, वो भी विटामिन डी की कमी से हो सकता है ऑस्टियोमैलेसिया, ठीक है। दो चीजें होती है, एक ऑस्टियोमैलेसिया, एक ऑस्टियोपोरोसिस, एडल्ट मैलेसिया और बच्चों में आप उसको बोलते हो, ठीक है। और कोई डाउट है क्या, चैप्टर का नोट्स बना लिया अनुष, ऑसम, ठीक है। समीक्षा, आई विल हैव टू चेक दैट, ओके, कि नी बहुत ज्यादा दूर है, ऐसे मैंने कंडीशंस देखे नहीं है कि नी बहुत ज्यादा दूर है, बट हो सकते हैं, बायो में आप कुछ भी बोल सकते हो, राइट, कोई भी कंडीशन इज पॉसिबल, है ना। तो एक चीज तो डेफिनेट है कि उनको कोई बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो आपको ऑर्थोपेडिक्स के पास जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हमारे पास जो कंडीशंस है, ये क्या बोलते हैं उसको, जीन से रिलेटेड, जो हमें सीखना था वो हमने सीखा रिकेट्स के बारे में। हो सकता है कोई और डिफॉर्मिटी हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कैल्शियम की कमी हो, है ना, आपको विटामिन डी की कमी हो,
फॉस्फेट की कमी हो, मैग्नीशियम की कमी हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके बोन डिफॉर्म हो रहे हैं। आप उसको बोन डिफॉर्मिटी के कंडीशन में रख सकते हो। ठीक है समीक्षा? ओके। अनुष पूछ लो, क्या पूछना है, जल्दी से पूछ लो, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें कुछ और भी स्टार्ट करना है, जल्दी से। देखो, जो मैंने पढ़ाया उससे कोई डाउट है तो पूछ लो। जो मैंने पढ़ाया है वो आपके एग्जाम में जो आने वाला है उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, ये बात आप समझ लो। जो मैंने पढ़ाया है आपके एग्जाम में जो आएगा उससे मैंने कहीं ज्यादा पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए उस चीज में जो आप आंसर्स लिखोगे। ठीक है, ब्लीडर्स डिजीज में क्या एक्सप्लेन करना है साई? ब्लीडर्स डिजीज में क्या होता है? हीमोफीलिया है। ठीक है, उसमें क्या होगा, इंसान को अगर कोई कट हुआ, कोई भी कट हुआ, कोई चोट लग गई, तो इंसान का खून स्टॉप नहीं होगा। ब्लड विल कीप रिलीजिंग आउट, ब्लड विल कीप रिलीजिंग आउट। ठीक है, ओके। तो इसमें आपके कुछ प्रोटीन होते हैं बॉडी में जो नहीं बनते, जिसकी वजह से डिजीज होता है। वो कौन से प्रोटीन है? उसका नाम हम क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं। अगर क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं बना तो भी आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। अगर क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं बना तो भी आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। सी, तो समीक्षा ने एक क्वेश्चन पूछा था कि वो मेडिकल कंडीशन को क्या बोलते हैं जब नीज दूर हो, जब नीज दूर हो। ठीक है, ऐसा कुछ, नीज आपके दूर हो। तो शी हैज आंसर्ड इट। इस मेडिकल कंडीशन को क्या बोलते हैं? वायरस डिजीज। आप सब जान सकते हो इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? वायरस डिजीज। जब ओवरलैप करती है तो हम उसको रिकेट्स बोल देते हैं। जब आपके नी दूर चले जाए तो वायरस डिजीज। थैंक यू समीक्षा। ठीक है, हाँ खुशबू, देखो डेविएट मत हो, मैं बोल रही हूँ ना, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी का कंडीशन है कि 8 और 9 नहीं बनता है। ठीक है, बाकी आपको रिसर्च करना है तो आप फ्री टाइम में गूगल खोल के रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, ओके, यस, सिंस इट इज बोर्ड्स क्लास ना, हमें टाइम अलॉट किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम मुझे आज एक्चुअली मॉलिक्यूलर बेसिस स्टार्ट करना था, बट आई एम टेकिंग दिस नाउ। ओके, मैंने जितना पढ़ाया है, रेस्ट एश्योर्ड, आप बिल्कुल श्योर रहो इस चीज के लिए, जो भी पढ़ाया है वो आपके सिलेबस से ज्यादा पढ़ाया है। ठीक है, ओके। अब हम सीखेंगे हमारा दूसरा टॉपिक। आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाने दो जो भी चैप्टर में है, उसके बाद जो भी डाउट है मैं पक्का आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। जो सिलेबस के बाहर का है वो भी क्लियर करूंगी। ठीक है, जो सिलेबस में मैंने पढ़ाया है अगर उससे डाउट है तो अभी भी आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, लेकिन सिलेबस के बाहर लेट मी कंप्लीट द सिलेबस फर्स्ट, उसके बाद मैं वो सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। ठीक है, यस, रोनित ने बिल्कुल थम्स अप दिया है मुझे। ठीक है, चलो आप सीखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सब कुछ रटने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ओके, आई ऑल्सो नो ओनली द कॉन्सेप्ट, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट जानती हूँ, बाकी मैं खुद अपने बच्चों को बोलती हूँ खुद से सीखो। राइट, यस, तो कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, अब देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में मैंने बताया था ना कि क्या होगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। सोचो, इसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा। मैंने बोला था ना, इसमें क्या होने वाला है, क्रोमोसोम का नंबर चेंज होने वाला है। या तो 46 से 47 हो जाएगा, या 47 से, सॉरी 46 से 45 हो जाएगा, है ना। आप बोलोगे मैम 46 से 45 हो गया,
45 से 44 नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अब बोलोगे मैम आपने 47 बोला, 47 से 48 नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है ना? सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन हमें जो सीखना है उस पर बहुत इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। हमें सीखना कौन सा कंडीशन है? जब 46 से एक ज्यादा हो गया 47, जब 46 से एक कम हो गया 45। हमें ये चीज सीखनी है। होने के तो बहुत कुछ हो सकता है, होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है? आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, है ना? होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, हमें जो सीखना है वही सीखेंगे ना। अभी जो पीएचडी में सीखना है वो अगर अभी सीख जाएंगे तो बोर्ड्स में फिर अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, राइट? है ना? तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, इसका एक रीजन है, एकदम ध्यान से समझना इस रीजन को, क्यों होता है ये, इसका जो रीजन है, अरे हाँ, इसका जो रीजन है, इट अकर्स ड्यू टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबको समझना जरूरी है, ठीक है? जो जरूरी है मैं हमेशा बताऊंगी आपको, अगर नहीं समझ आए तो 10 बार पूछना, 10 बार समझाऊंगी इसको, ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। अकर्स ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है? इट अकर्स ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्या समझ आया कुछ? देखो, अगर आप एग्जाम में ये लिख दोगे ना, फुल मार्क्स मिलेगा, कोई नहीं कट करेगा आपका मार्क्स। वैसे तो फिर रट्टाफिकेशन हो गया ना। आपको लिखना एग्जाम में यही है, एग्जाम में लिखना यही है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो हो रहे हैं वो ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो रहे हैं, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान चाहिए मुझे, मोर अटेंशन आई रिक्वायर, ठीक है? यस अदिति, आप बिल्कुल करेक्ट हो। देखो, अगर आपने 11th पढ़ा है, ऑब्वियसली पढ़ा है ना, अगर आपने 11th पढ़ा है तो आपने सीखा होगा एक प्रोसेस मियोसिस होता है, सीखा है कि नहीं सीखा है? मियोसिस होता है, उस मियोसिस में क्या होता है, अगर आप ह्यूमन सेल लेते हो ना, तो ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होता है, सीखा है ना? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो ऐसा होता है कि 23 ऊपर चले जाते हैं और 23 नीचे चले जाते हैं, कुछ समझ आ रहा है? 23 क्रोमोसोम्स आपके यहाँ आ जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स, और दूसरा 23 यहाँ आ जाएगा, कुछ समझ आ रहा है? अब इससे ध्यान से मेरी बातों को सुनना, हम कहाँ पहुंचे हैं? यहाँ पहुंच गए, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम, यहाँ पे 23। अब इससे क्या होगा, 2 सेल मिल जाएंगे आपको, ध्यान से सुन रहे हो ना? अब मुझे बता दो ये 2 सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? ये डिवाइड होके एक बना देगा, ये डिवाइड होके एक बना देगा, कितने मिलेंगे? 23 मिलेंगे ना, है ना? अब देख लो 23 यही तो आपका गैमेट है ना, यही गैमेट है कि नहीं है? मेल गैमेट आपको 23 क्रोमोसोम्स होगा, फीमेल गैमेट में भी 23 क्रोमोसोम होगा। ध्यान से सुनना, ये सब चीजें नहीं कंफ्यूज करना है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर बहुत ध्यान देना है। ये फ्यूज कर जाता है, उसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, है ना? फ्यूज कर गया तो बता दो कितना क्रोमोसोम आ गया, ध्यान से बोलो मुझे, 46 आया कि नहीं आया? 46 आएगा कि नहीं आएगा? देखो मियोसिस से क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, हो गया, गैमेट बनेगा, गैमेट बनने के बाद मेल गैमेट फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होता है, 46 बन जाता है। तभी तो सबके पास 46 है ना, क्योंकि सबके सब हम सब मेल और फीमेल अपने पापा और मम्मी के गैमेट से बने हैं, है ना? पापा से 23 क्रोमोसोम्स आए, मम्मी से भी 23 क्रोमोसोम्स आए, तब हम 46 क्रोमोसोम बन गए, ठीक है? तो अब बताओ
ये अगर कंडीशन है तो ये आइडियल कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रोमोसोम का नंबर एकदम सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रोमोसोम का नंबर बिल्कुल सेम है। अब देखो, अब जादू होने वाला है। ऐसा अगर हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसी को हम बोलते हैं डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। इसी को क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम सेपरेट हो गया, जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम थे वो अपना अलग अलग हो गए। समझ आ रहा है? अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो कि यहाँ पे 24 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया? 24। तो यहाँ पे कितना जाएगा? सोचो सोचो, यहाँ पे कितना जाएगा? ध्यान से सोच के बताना मुझे। 22 जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना 22, है ना? तो अगर क्रोमोसोम सेपरेट हो गए इक्वली तो उसको बोलते हैं डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। डिसजंक्शन, जंक्शन का मतलब एक जगह, जंक्शन का मतलब एक जगह, डिस का मतलब सेपरेट हो जाना। तो एक जगह से वो दूसरे जगह सेपरेट होते हैं। अगर वो इक्वली सेपरेट होते हैं, क्रोमोसोमल डिजीज नहीं। अब हम दूसरा केस सीखते हैं। मैंने इसका हिंट तो आपको दिया ही है, दूसरे केस में क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? मान लो यहाँ कितने क्रोमोसोम्स आ गए? 22। और यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स आ गए? जितना रिमेनिंग है, कितना? 24। कुछ समझ आ रहा है? तो एक साइड गया 22, दूसरे साइड आया 24। तो बेटा 2 सेल बनाओ, इससे बना दो 2 सेल, मेरे को बताओ। इससे गैमेट्स बन गए ना? इससे गैमेट्स तो बन ही गए, बने या नहीं बने? इससे गैमेट्स बन गए। अब मुझे बता दो, ये वाले गैमेट में कितना सेल गया, कितना क्रोमोसोम गया? 22। ये वाले गैमेट में कितना क्रोमोसोम गया? 24। क्यों? इसका रीजन क्या था? नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, मियोसिस के टाइम जो डिसजंक्शन हो रहा है वो प्रॉपरली नहीं हुआ। मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, नॉन डिसजंक्शन की जगह मैं ये भी बोल सकती हूँ फेलियर, फेलियर ऑफ डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। होना चाहिए था लेकिन अच्छे से नहीं हुआ, वो फेल हो गया। उसको 23 अच्छे से सेपरेट करना चाहिए, नहीं कर पाया, तो मैं क्या बोलूंगी? फेलियर ऑफ डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। या मैं उसको ऐसे लिख दूंगी, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। कुछ समझ आ रहा है दिमाग में? अब दिमाग यूज करो थोड़ा। सबको दिमाग है ना, मुझे पता है, तो यूज करो इसको, है ना? कि नॉन भी यूज कर सकते हैं, या मैं ये भी बोल सकती हूँ ये फेल हो गया, फेलियर ऑफ डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो आ जाओ फिर से यहाँ। तो ये हुआ क्यों? नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से, या फेलियर ऑफ डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से। फेलियर ऑफ डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, आई होप सबके पास दिमाग है और सब समझ रहे हो। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं पता है? जब ऐसे ऊपर नीचे क्रोमोसोम नंबर होने लगे गैमेट में, जब नॉन डिसजंक्शन होने लगे, उसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, एन्यूप्लॉइडी। ध्यान से देखो, इसको तोड़ लो अच्छे से, यूप्लॉइडी और एन। फिर से देख लो, क्या है? एन यूप्लॉइडी। इसको तोड़ लो, एन और यूप्लॉइडी में जहां भी एन हो, ए हो, इसका मतलब नो आ जाता है ना, मतलब ये यूप्लॉइडी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये यूप्लॉइडी नहीं है। समझ आ रहा है ना भाई? यूप्लॉइडी क्या था फिर? यूप्लॉइडी ये था 46। कुछ समझ आ रहा है? यूप्लॉइडी का मतलब असली प्लॉइडी। अहमद उठ जाओ, अहमद वेक अप। ओके, तो यूप्लॉइडी क्या है आपका?
46 जितना होना चाहिए। अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया, 46 से 47 हो गया, 47 से 45 हो गया, तो वो क्या होगा? एन्यूप्लॉइडी। क्या होगा? एन्यूप्लॉइडी। कुछ समझ आ रहा है? कुछ समझ आया? तो एन्यूप्लॉइडी में आप ऐसे लिख सकते हो, दो कंडीशन सीख लो, बस दो ही सीखना, ज्यादा मत सीखना, ठीक है? जितना जरूरत है। ज्यादा सीख जाओगे तो ज्यादा कंफ्यूज होगे। बात को मेरी ध्यान रखना इसको। ट्राइजोमी, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें नहीं जानते हो ना, तो आप ज्यादा कंफ्यूज होने लगोगे, इसलिए जो जरूरत है उस चीज को अच्छे से सीखो, ठीक है? ट्राइजोमी और मोनोजोमी। ट्राइजोमी और मोनोजोमी, एकदम ध्यान से देखना। ट्राइजोमी में मैं कुछ ऐसा लिख रही हूं, 2n+1, और मोनोजोमी में मैं कुछ ऐसा लिख रही हूं, 2n-1। ध्यान से देखो, अगर मैं इस 46 को 2n बोल दूं, गलत है क्या? 46 2n है कि नहीं है? यस आनुष, करेक्ट। 46 2n है ना? 46 आपका डिप्लॉयड है ना? यस और नो? यस पे क्लिक करो तभी मैं आगे बढ़ने वाली हूँ, नहीं तो बढ़ूंगी ही नहीं आगे। सबको यस पे क्लिक करोगे, ये इजी है, ठीक है? आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि टाइपिंग थोड़ा मुश्किल है, बट यस पे क्लिक करना इज नॉट डिफिकल्ट। यो, यस, ओके। तो आपका जो 2n है वो डिप्लॉयड है ना? तो मैंने 2n लिख दिया। अब मैं 47, अगर मुझे 47 लिखना है तो 2n आपका 46 है +1, तो ये 47 हुआ कि नहीं हुआ सोचो। क्या मैं इसको इस फॉर्मूला से लिख सकती हूँ 2n+1 ट्राइजोमी? ट्राई मतलब एक एक्स्ट्रा आ गया, लिख सकती हूँ ना? बिल्कुल लिख सकती हूँ। अगर 45 हो गया तो 46 से अगर 45 हो गया तो इससे मुझे 1 माइनस कर देना है। देखो मैंने माइनस कर दिया, 2n-1 मोनोजोमी। कुछ समझ आ रहा है? दिमाग में कुछ जा रहा है? सबको जा रहा है ना? हाँ, तो ट्राइजोमी आपका बढ़ गया, मोनोजोमी आपका कम हो गया। 46 से ज्यादा ट्राइजोमी, 46 से कम मोनोजोमी। कितने क्रोमोसोम ज्यादा हो रहे हैं? बस एक क्रोमोसोम ज्यादा हो रहे हैं, 47। कितने क्रोमोसोम कम हो रहे हैं? बस एक। मैंने आपको बताया है, एक से ज्यादा भी ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी कम हो सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। हमें वो सीखना नहीं अभी, वी डोंट हैव टू लर्न दैट, ठीक है? बाद में ये मत बोलना कभी, बाद में अगर ज्यादा इंटरेस्ट आया बायो में और बायो सीख रहे हो तो ऐसा मत बोलना मैम ने तो हमें बस यही सिखाया था। आपको इतना ही जरूरत है अभी, ठीक है? तो मेरे को उस समय कर्स मत करना, ठीक है? आई होप यू विल नॉट डू, बट ठीक है, ठीक है? क्या सेजल, ये कौन सा वर्ड है? प्लूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी ना? ठीक है, ठीक है, वो समझ लेते हैं। सेजल ने पूछा है पॉलीप्लॉइडी क्या है। सबको इतना समझ आ गया है ना? ये बहुत जरूरी था समझना। बाकी मैं जो भी समझा रही हूँ अभी, नहीं भी समझोगे तो चलेगा, ठीक है? तो पॉलीप्लॉइडी एक टर्म है, पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। ये पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? पॉली का मतलब बहुत ना, बहुत ज्यादा। प्लॉइडी का मल्टीप्लाई कर दो, प्लॉइडी को मल्टीप्लाई कर दो। आपका यूप्लॉइडी क्या है? यू का मतलब ट्रू होता है ना? आपका एक्चुअल वाला प्लॉइडी क्या है बताओ? 2n है ना? आपके बॉडी में एक्चुअल आपका प्लॉइडी 2n है, 46। अब पॉलीप्लॉइडी मतलब, पॉलीप्लॉइडी मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कर दिया मल्टीप्लाई, 4n कर दो, तो ये क्या हो गया? पॉलीप्लॉइडी। कितनी बार? टेट्रा हो गया, टेट्राप्लॉइडी। जैसे कि 2n क्या है? डिप्लॉइडी, है ना? इसको अगर हाफ कर दोगे 2n को, n, ये हैप्लॉइडी। कुछ समझ आ रहा है आपको? अगर आप सेम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो उससे आपका प्लॉइडी आता है।
आपका यूप्लॉइडी अगर मान लो 2n है, डिप्लॉइडी, आपका डिप्लॉइडी कंडीशन बेस है। अब इसमें अगर हाफ कर दोगे तो हैप्लॉइडी, अगर इसको ज्यादा करोगे टेट्राप्लॉइडी, उसको 6 टाइम्स कर दोगे हेक्साप्लॉइडी, 8 टाइम्स करोगे ऑक्टाप्लॉइडी, वही कंडीशन आपका पॉलीप्लॉइडी है। समझ आया सेजल? समझ आया क्या पॉलीप्लॉइडी क्या है? नहीं, मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी का मतलब, हाँ, मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी सेम है। समझ गई मैं आप क्या पूछ रहे हो, बिल्कुल सेम है। मोनो का मतलब एक प्लॉइडी ना, तो एक प्लॉइडी आपका एन ही है ना, और हैप्लॉइडी भी एन ही होगा। डिप्लॉइडी मतलब इसको आप 2n कर देते हो, टेट्राप्लॉइडी मतलब 4n कर दोगे, हेक्साप्लॉइडी मतलब 6n कर दोगे। सेम ही क्रोमोसोम को आप बार बार डुप्लीकेट करोगे, है ना, उसको बार बार बड़ा नंबर इंक्रीज करते जाओगे। ठीक है, तो हम सीख रहे थे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। उसको सीखने के लिए मैंने एक लाइन बताया था, उस लाइन के पीछे इतनी बड़ी कहानी थी, है ना, अकर्स ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। समझ आ गया होगा? समझ आया ना कि नहीं समझ आया? देखो मैं ये मान लो किसी इंसान से गैमेट मिला, उस गैमेट में कितने क्रोमोसोम? मेल गैमेट में 22 क्रोमोसोम। कोई फीमेल है, उसके पास कितने क्रोमोसोम? 23 क्रोमोसोम। फ्यूज कराओगे तो कितना क्रोमोसोम आएगा जाइगोट में? 45 आएगा ना, आएगा कि नहीं? तो ये आपका कंडीशन कौन सा हो जाएगा? मोनोजोमी। यस और नो? मान लो कोई मेल गैमेट है, किसी में 23 आ गया और किसी में 24 आ गया, इसको अगर फ्यूज कराओगे तो 47 आ जाएगा। ये कौन सा कंडीशन है? ट्राइजोमी। हो सकता है ना, देखो, हो सकता है कि नहीं? आपको गैमेट 22 भी मिल सकता है, 24 भी मिल सकता है, 22 भी मिल सकता है और 24 भी मिल सकता है, राइट? 22 एज वेल एज 24। अगर ऐसे गैमेट मिले आपको तो आपका नॉन डिसजंक्शन हुआ और उसकी वजह से मोनोजोमी और ट्राइजोमी कंडीशन आती है। ठीक है, अब डिजीज सीख लेते हैं। देखो इतना सारा टाइम हो गया, 2 बज गया फटाफट, तो मैं थोड़ा सा टाइम लेने वाली हूँ। अब एग्जाम्पल सीख लेते हैं, ठीक है? जैसे डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या है, कितने नंबर क्रोमोसोम है? ये ट्राइजोमी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ट्राइजोमी। यस प्रियंका, एग्जाम्पल सीखना इजी है, कॉन्सेप्ट अगर सीख गए हो ना तो एग्जाम्पल आप सीख जाओगे। ट्राइजोमी होता है मतलब इसके पास कितने क्रोमोसोम है? 47 क्रोमोसोम है ना? हाँ हाँ, एकदम थोड़ा सा पेशेंस रख लो, थोड़ा सा पेशेंस, मैं बता दूंगी सब कुछ, रुक जाओ। 47 है, ट्राइजोमी मतलब 47, मतलब 46 प्लस 1, मतलब कोई ना कोई क्रोमोसोम इसमें 2 बार आ गया, कोई ना कोई क्रोमोसोम इसमें ज्यादा आ गया। तो भाई इसमें बोलते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 21 कितनी बार आ गया? 3 टाइम्स। क्रोमोसोम नंबर 21 कितनी बार आ गया? 3 टाइम्स। समझ आ रहा है? एक्चुअली हर क्रोमोसोम आपके बॉडी में कितनी बार है? 2 बार है, तभी हम बोलते हैं ना 23 पेयर्स। बट इसमें क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 21 कितनी बार है? 3 बार है। इसकी वजह से इसका नंबर क्या हो गया? 47. So it is trisomy condition of which chromosome number? Chromosome number 21. Trisomy condition of which chromosome number? Chromosome number 21. ठीक है? हाँ, यस यस प्रेरणा, सबको समझ आ गया है आई होप। चलो एक और डिजीज सीख लेते हैं, मोनोजोमी का एग्जाम्पल सीख लेते हैं। मोनोजोमी, टर्नर सिंड्रोम।
टर्नर्स सिंड्रोम, ये मोनोजोमी का प्रॉब्लम है। इसमें क्या होगा, कोई कोई क्रोमोसोम नहीं होगा, है ना, 45 क्रोमोसोम्स होंगे टोटल, तो इसमें ये कंडीशन होता है। 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, मतलब 44, है ना, प्लस एक्स प्लस व्हाट, एक्स प्लस एक्स। ओ का मतलब कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ओ का मतलब कुछ नहीं, नथिंग, ठीक है। तो आप देख लो 22 पेयर्स का मतलब 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम, तो ये एक्स क्रोमोसोम है, इसमें वाई नहीं है, मतलब ये होगी तो फीमेल ही, होगी तो फीमेल ही, है ना, लेकिन ये फीमेल स्टेराइल होंगी, ठीक है। इनका जो ओवरी होगा ओवम नहीं बनाएगा, है ना। इनमें कुछ कुछ कैरेक्टर मेल के जैसे हो सकते हैं, उनका आवाज मेल के जैसा हो सकता है ना। तो कुछ कुछ चीजें, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है ना। तो ये है आपका टर्नर सिंड्रोम, एक एग्जाम्पल मोनोजोमी का। डाउन सिंड्रोम, ये एग्जाम्पल हो गया आपका ट्राइजोमी का। और भी एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम के, एक आप और सीख सकते हो, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे प्लस एक्स एक्स वाई, तो 22 पेयर्स कितने हो गए, 44 45 46 47। तो भाई इसमें देख लो क्या कंडीशन हो गया, इसमें वाई क्रोमोसोम है, इसमें वाई क्रोमोसोम है, इसका मतलब ये मेल होगा या फीमेल होगा, वाई क्रोमोसोम है, इसका मतलब ये मेल होगा, लेकिन ये मेल स्टेराइल होगा, क्योंकि इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। ये मेल में हो सकता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाए, ये मेल स्पर्म्स को फॉर्म नहीं करेगा, मेल गैमेट फॉर्मेशन नहीं करेगा, इसीलिए मेल स्टेराइल है, ठीक है। किसको ये डाउट था स्टेराइल का मतलब क्या होता है, जिसको भी था, मैंने देखा था कहीं पे, तो ये डाउट आपका, तो स्टेराइल का मतलब वो गैमेट नहीं बना पा रहे हैं, है ना, मेल है तो मेल गैमेट नहीं बन पा रहा, फीमेल है तो फीमेल गैमेट नहीं बन पा रहा, तो उसको हम स्टेराइल बोलते हैं। किसी को कोई डाउट है जो मैंने पढ़ाया है, इससे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। तो आप घबराओ मत, टेंशन मत लो, जितना पढ़ाया है ना उसको रिवाइज करते रहो, टॉप करोगे, ठीक है, टॉपर बनना है ना सबको, हमें कंफ्यूज नहीं होना चीजों में, है ना। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप, बायो एक बहुत इजी सब्जेक्ट है ना, आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, और आप फिर कंफ्यूज होने लगोगे, एकदम दिमाग खराब होने लगेगा आपका, अरे ये क्या होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो जो मैंने पढ़ाया है उसको एकदम अच्छे से समझ जाओ, अच्छे से याद कर लो, अच्छे से रिकॉल कर लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास और टाइम है, आपका सारा सब्जेक्ट ठीक से हो गया है, फिर आप रिसर्च करो, बहुत अच्छी बात है, करो उसके बाद, ठीक है। तो एक और चीज है जो हमें सीखनी है, क्या मैं सिखाऊं पेडिग्री एनालिसिस, या कर लोगे खुद से, सिखाऊं या कर लोगे खुद से पेडिग्री एनालिसिस, बोलो, जो बोलोगे वही होगा। पेडिग्री एनालिसिस ये महाराष्ट्र में एक्चुअली नहीं है, बट सीबीएसई वालों के लिए है, सिखाऊं, चलो सिखाती हूँ। आपकी कोई क्लास है 215 को, कोई क्लास है आपकी 215 को, हाँ है, ठीक है, अगर क्लास है तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, क्लास अगर है, बहुत लोगों का मैथ्स भी होगा, राइट, है ना। तो हम क्या करें इसके लिए, ठीक है, मैं आपको ये सिखाऊंगी, मैंने बोला है तो मैं सिखाऊंगी, कल की क्लास में इसको सिखा दूंगी, और कल हम मॉलिक्यूलर बेसिस स्टार्ट करेंगे, है ना, आपको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए ना, कल मॉलिक्यूलर बेसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो भी थोड़ा मोड़ा डाउट है आपको, आप थोड़ा गूगल कर लो, गूगल से नहीं मिलता है तो मैं हूं, पूछ लो,
जो मैंने पढ़ाया है, जिसको भी कुछ भी डाउट्स है कल अगर है पूछ लो, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आई विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू, जो मैंने पढ़ाया है उससे। अगर आप पूरे आंसर्स देते हो, आप एकदम फ्री हो डाउट्स पूछने के लिए, ठीक है। ओनली फ्रॉम द सिलेबस, ओनली फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, ठीक है। तो उसके बाद हम मॉलिक्यूलर बेसिस स्टार्ट करेंगे। चलो आप थोड़ा रेस्ट कर लो, हाँ, आपको लंच वंच भी करना होगा, ठीक है। कल मिलते हैं, कल मैं पढ़ा दूंगी आपको पेडिग्री भी। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।